دیتا ہوں برادر محمد ریاض مہاراج گنجی متعلم عربی ششم کو کہ موصول تشریف لائے اور تعارف انجمن پیش کریں۔ ابھی ننھے منھے بچے عبداللہ سلموں نے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے۔ مولانا عجب اللہ صاحب نے 100 روپے، آصف سلموں نے 30 روپے، مولانا فاتح صاحب جو فاتح زمانہ ہے 500 روپے، مولانا فاتح صاحب 200 روپے اور مولانا عبدالماجد صاحب شیرواں 200 روپے اور ایک صاحب نے اور 100 روپے دیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، ہم اس وقت مشرقی یوپی کے مشہور ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے صحن میں انجمن صیانت اللسان کے سالانہ اور اختتامی عظیم الشان پروگرام میں شریک ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کا قیام 1930 عیسوی میں شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ خلیفہ ارشد مجدد ملت حکیم زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آیا۔ آج الحمدللہ تقریباً 1 صدی پہلے لگایا ہوا وہ ننھا سا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی آبیاری میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ وقت نے اپنی عمریں کھپا دی۔ ان حضرات کی ایک لمبی تاریخ ہے، نہایت روشن اور بے حد درخشاں۔ سب سے پہلے ہم تمام شرکائے انجمن صیانت اللسان، تمام اساتذہ کرام، بالخصوص حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی، حضرت اقدس مولانا جمال انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اجود اللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتہم اور دیگر ذمہ داران مدرسہ نیز اس وقت اس پررونق بزم میں شریک تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری حقیر سی دعوت پر اس پروگرام میں شریک ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ محترم حضرات، 20ویں صدی کی ابتدا میں مشرقی یوپی میں اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں جو مدرسے وجود میں آئے ان میں ایک بڑا ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ بھی ہے۔ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جسے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مشورہ سے سرائے میر و اطراف میں پھیلے غلط عقائد اور نئے فتنوں کے سرباب اور اصلاح کے لیے قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے قائم ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل یہ دین اور علم دین کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس بافیض درسگاہ سے ہزاروں علماء فضلاء زیور علم سے آراستہ ہو کر اکناف عالم میں مصروف عمل ہیں۔ مدرسہ میں جہاں درس و تبلیغ اور اخلاق و تربیت سیکھتے ہیں وہیں تقریر و تحریر بھی سیکھتے ہیں۔ طلبہ مدرسہ کی چہار دیواری میں جہاں کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں وہیں اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ طلبہ اس علم کو دوسروں تک منتقل کرنے کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو۔ اس لیے مدرسوں میں انجمنوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ مدرسہ بیت العلوم میں بھی ایک انجمن صیانت اللسان کے نام سے قائم ہے۔ انجمن صیانت اللسان کی تاسیس مدرسہ کی ابتدائی دور میں تو انجمن کا کوئی نظم نہیں تھا،
मगर जो जो मदरसा को तरक्की होती गई, तलबा के लिए एक अंजुमन नागुज़ेर हुई। इब्तदाई दौर में जुमेरात की रात में तलबा अरबी के किसी उस्ताद की निगरानी में तकरीर व तहरीर की मश्क कर लिया करते थे, मगर बाकायदा अंजुमन का क़याम मोहसिनुल उम्मत हजरत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 1460 हिजरी मुताबिक 1986 ईस्वी में हुआ। अंजुमनों का मकसद ये होता है कि तलबा की इस्तेदाद पुख्ता करने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जिससे वो तकरीर और तहरीर में महारत पैदा करें, जिसकी मदद से अपने उलूम को निहायत खूबसूरत अंदाज में दूसरों तक मुंतकिल कर सकें। इस ज़माना में हजरात अहले इल्म का फरीज़ा ये है कि वो शरीयत मुतहरा को पैकर जमील की सूरत में अवाम के सामने पेश करें, ताकि लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उसकी जानिब लपकें, और ये बात बगैर उम्दा तकरीर और तहरीर के मुमकिन नहीं। अंजुमन की सरगर्मियाँ। तलबा अंजुमन सियानतुल लिसान से हस्बे ज़ैल तरीक़े से फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 1, तालीमी साल के आगाज़ ही से तमाम शुरकाए अंजुमन हफ्तावारी प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं और अपने असातिज़ाए किराम की निगरानी में अपने अंदर तकरीरी सलाहियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। नीज़ हर माह जिदारी पर्चा निकालने का भी एहतमाम करते हैं। नंबर 2, तालीमी साल के आखिर में तलबाए अंजुमन अवामुन्नास और दूर दराज से आए हुए मेहमानाने किराम के सामने इख्तितामी प्रोग्राम पेश करते हैं, जिसमें हकम हजरात के बासवाब फैसले पर तमाम शुरकाए अंजुमन को हस्बे लियाकत ग़ैर क़द्र इनामात से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। नंबर 3, इस अंजुमन के तहत एक लाइब्रेरी बनाम अक़दी दारुल मुताला भी है, जिसमें मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल तकरीबन 3000 किताबें मौजूद हैं, जिनसे तलबाए अज़ीज़ अपनी इल्मी प्यास बुझाते हैं। नंबर 4, अंजुमन की आमदनी हर साल मुख्तलिफ होती है। यह आमदनी तलबा की मेहनत और कदो काबिश से दरआमद की जाती है। कोई मुतय्यन ज़रिया आमदनी नहीं है। वो आमदनी किताबों की खरीदारी और शुरकाए अंजुमन की हौसला अफजाई में इख्तितामी प्रोग्राम के इंतजाम में खर्च होती है, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रहता है और साल के आखिर में हजरत सरपरस्त अंजुमन मुद्ददिल्लहुल आली की खिदमत में पेश करते हैं और हजरत अपने मुआयने के बाद दस्तखत भी सख्त फरमाते हैं। अगराज़ व मकासिद। अंजुमन के अगराज़ व मकासिद हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, तलबाए अज़ीज़ के अंदर अपनी इल्मी लियाकत, तहरीरी सलाहियत और तकरीरी खूबियों को खूबसूरत अंदाज में अवामुन्नास के सामने पेश करने की इस्तेदाद पैदा करना। नंबर 2, अज़ीज़ तलबा के अंदर मख्फी इंतज़ामी सलाहियतों को उजागर करना, जिसकी ज़रूरत अमली मैदान में हर शख्स को होती है। नंबर 3, तलबाए अज़ीज़ के अंदर खुद एतमादी और बुलंद हिम्मती पैदा करना। नंबर 4, ऐसे अफराद तैयार करना जो अला मिनहाजी नबुव्वत दीनी दावत का फरीज़ा अंजाम दे सकें। आखिरी बात, मेहमानाने निज़ाम। आपके इस अज़ीमुश्शान सालाना इजलास में आपकी आमद पर 100,000 मुबारकबाद पेश करते हैं और इस बज़्म रूहानी में आप हज़रात की शिरकत पर खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह आपने इस वक्त हमारा साथ दिया, इसी तरह जलसा के इख्तिताम तक हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम आप हज़रात की दुआओं और तवज्जुहात की बरकत से निहायत ही उम्दा तरीके से अंजाम पज़ीर होगा। आखिर में इस हकीकत का एतराफ़ नागुज़ीर है कि उम्मत में इनक़िलाब, हालात में तब्दीली, मुआशरे में इस्लाह, फ़िक्र व ख़याल में पाकीज़गी, रगों में हरारत, अमल में जोश, नज़र में तासीर, अज़ाइम में पुख्तगी, नियतों में खुलूस इन्हीं दीनी मदरसों और बुजुर्गान दीन की कामिल सोहबतों मईयत से पैदा होते हैं। इनकी खिदमत में आने जाने से गफलत का पर्दा चाक होता है, जिंदगी संवरती है, अखलाक व किरदार की खुशबू मिलती है। आइए आज से अज़्म मुसम्मम करें कि अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालेंगे और उलमा
सुलहा और अतकिया और दीनी मराकिज यानी मदरसों से अपना रिश्ता मजबूत करके अपने ईमान और अकायद और अखलाक व मुआमलात को संवारेंगे और दीन और शरीयत के साथ दुनिया के हर मैदान में फतह गलबा का परचम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आप हजरात जो इधर उधर खड़े हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ गेट पर भी जो लोग खड़े हैं जगह है यहाँ आकर बैठ जाए। दाएं साइड